Hello everyone, welcome to the Code Vixa YouTube channel. So in this video, I will teach you how can you calculate the simple interest with 5 methods. So students, इस प्रोग्राम में आपको मैं बताने वाला हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम को आप 5 तरीके से किस तरह से बना सकते हैं, जिसमें पहला तरीका होगा सिंपल प्रोग्राम इन द सेंस विद स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, जिसमें आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के यूज करके आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। सेकंड इज वी विल यूज़ द स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास हम यूज करते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए। एंड थर्ड वन इज़ द मेथड। सो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हम मेथड भी यूज करेंगे जिसे बोलते हैं मेथड प्रोग्रामिंग। एंड फोर्थ वन इज़ द पैरामीटराइज। सो स्टूडेंट्स, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उस केस में हम कुछ पैरामीटर या फिर कुछ वैल्यूज भी पास करा देते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द रिटर्न स्टेटमेंट। सो अपने प्रोग्राम में हम रिटर्न स्टेटमेंट को भी यूज करेंगे एंड जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है हम वहाँ पे वैल्यू को रिसीव करके उसको प्रिंट कराएंगे। सो ये है हमारे 5 मेथड जो हम यूज करने वाले हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम में। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जो कि P दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, R that is rate per annum, T it is the time in year. So formula of the simple interest is simple interest equal to P into R into T and divide by 100. सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का और इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। सो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लूजे। एंड स्टूडेंट्स, ब्लूजे इज़ द IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। सो ये मैंने ओपन यहाँ पे कर लिया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट in the BlueJ. So I will click on the project and new project and give the project name. So students, here project is created and students, project you have to create one time only. केवल एक ही बार आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो उसके बाद में आप क्लास को क्रिएट करोगे। क्लिक ऑन द न्यू क्लास एंड गिव द नेम ऑफ द क्लास इज simple int. I have given the name only simple int and you can write the full name also, simple interest. And file is created. So students, right click on it and open editor. Here you can see this is the pre-written code and press Ctrl A to remove it, press backspace or delete key from the keyboard and create a class. Simple interest. So here I have created a class and we have to create a main method. Static void main. So students, I have created here main method and main method is the startup of the program, because every programming language has a default and has a main method that is useful to execute the program. So students, here we required 3 variables and one more variables to store the calculation. So here I will declare int P, int R, int T, and in double we can declare SI. So here students, we can assign the values and this values is static initialization. Got it? And here five, rate per annum and time in year 2 years. Okay, and students, you can apply the formula double SI equal to
P into R into T and divide by 100, and we can print the SI. SI stand for simple interest. System dot out dot println So here students, what I did, so first of all I have created a class simple with the name simple interest, and again created a method, so it is the startup of the program. And students, I have declared three variables and initialized static values. So before execution the program, when you will declare any values, that is called static initialization. And here I have declared one more variable SI, which will hold the calculation of this statement. So here students, the value is stored in SI, and here I have printed SI, that is simple interest. So after written the code, first of all you have to compile this program. So compile, as you can see, class compiled, no syntax error. That means this program is ready to execute. So after compilation, close and right click on it, and you will see here void main. Click on it, and you can see the output in the terminal window. So student, this is your output window as well as the terminal window, we can say. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो बन जाता है, ठीक है, विद स्टैटिक इनिशियलाइजेशन. अब यही काम हमें करना है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन से. सो हियर आई विल यूज द सेकंड वे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू import java dot util dot scanner. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने import किया है स्कैनर की लाइब्रेरी को, जिसके अंदर काफ़ी सारी क्लासें और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इनपुट लेने के लिए यूज किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर इम्पोर्ट द पैकेज ऑफ द स्कैनर, वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर. सो हियर स्कैनर SC is the object and new scanner, and here I will pass system.in. So here students, this is the name of the class जो कि स्कैनर नाम से है, एंड यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एंड ऑब्जेक्ट का नाम है SC. एंड न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एंड किसका, स्कैनर क्लास का. एंड सिस्टम डॉट इन ये हम यूज करते हैं ताकि कीबोर्ड से इनपुट ले सके, एक मीडियम है कीबोर्ड से इनपुट लेने का. सो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है. एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, and here enter the value of P R and T. Now instead of the values, we can use the method of scanners. So according to the data types, so यहाँ पे integer data type हमारा variable declared है जो कि P है, और इसके लिए हम यूज करेंगे SC, the help of object, and we can call the method next int. So ये वाला जो मेथड है next int, ये एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है, और इसी मेथड को हम यूज कर सकते हैं with another variable. So students, our program is completed and compile now. So here I have compiled, no syntax error, that means this program is compiled without any error. So try to execute, right click and main method. So here students, ये है आपकी डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है. पहले हमने क्या किया था, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, जिसमें वैल्यू हमने पहले ही दे दिया था, बट ये है हमारी डायनेमिक इनिशियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास. सो हियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू put the values. So it is asking for the values, and we can enter 5000, enter 3 rate and 2 years के लिए.
So students, you can check the value after calculated 300 point something. ये पॉइंट में आया क्योंकि हमने एस आई को डबल में डिक्लेयर किया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, दो मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, दो वे हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल प्रोग्राम एंड यूजिंग स्कैनर. अब हमें यूज करना है मेथड को. सो स्टूडेंट्स, मेथड को यूज करके इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा, एक मेथड बनाना होगा. सो इसी में ही हम बना लेते हैं जो कि विदाउट स्टैटिक होगा. सो वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन दिस प्रोग्राम. Public void display. So here students, I have created a method display, and this calculation I will do in display method. So everything I have copied and pasted in the display method, and as you can see here, there is no communication between the display method and main method, so it will not execute directly. इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंस्टेंस बनाना होगा क्लास का, और क्लास है सिंपल इंटरेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ob इक्वल टू न्यू सिंपल इंटरेस्ट. सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है. अभी भी हमारा डिस्प्ले में और मेन मेथड में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है. सो इसको ज़रूरी है क्योंकि मेन हमारा फर्स्ट मेथड होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है विदाउट ऑब्जेक्ट की. ठीक है, बट इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डिस्प्ले को कॉल करा सकते हैं. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प लेंगे. सो हियर ob डॉट डिस्प्ले. So students, in the main method we have created the object of the class, and by the help of object we call the display method. अब क्या होगा, जैसे ही हम मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन मेथड डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देगा. सो कंपाइल इट, क्लोज, राइट क्लिक ऑन इट, एंड यू विल सी हियर मेन मेथड एंड दिस. सो स्टूडेंट्स, फिर से हमसे यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू एंटर कर देते हैं 5 and 2. So students, you can see the output. Got it students? Now here we have completed three ways, three methods we have completed, and now we will use fourth method with parameterize. So students, again we have to make change in this method. यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ से हम कोई पैरामीटर को पास करा सकते हैं. पैरामीटर के साथ में जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके साथ में कुछ आर्गुमेंट या कुछ पैरामीटर पास करा सकते हैं. वो पैरामीटर क्या हो गए, वो पैरामीटर हमारी वैल्यूज होती हैं. सो हियर स्टूडेंट्स, we will just copy and paste, and you can pass prt in the display method, and here we have to access, because ये जो आपका डिस्प्ले मेथड है, ठीक है, ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन होती है, ये आपका हेडर होता है, मेथड हेडर. गॉट इट? जैसे हम यहाँ से कोई वैल्यू को पास करते हैं उसी केस में हम यहाँ पे उसको एक्सेस करना होता है, वो भी विद द डेटा टाइप. वो डेटा टाइप हमारा कौन सा है, इंटीजर. तो यहाँ पे इंट p, इंट r, इंट t. आप p r t की जगह कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं अगर आप एज ए पैरामीटर उसको एक्सेस कर रहे हैं. गॉट इट? बिकॉज वी हैव ऑल्सो डिक्लेयर दीज वेरिएबल्स in the main method, and we want to access the parameters, the values as a parameter. So we have to write in this form. Compile and execute it again. Void main. Now it is asking again. Now students, we got the output.
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे 4 मेथड कंप्लीट होते हैं। अब आता है आपका 5th। सो स्टूडेंट्स ये 5th मेथड क्या है, रिटर्निंग वैल्यूज़। इसमें क्या होता है कि जब वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये जब कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद में हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। अब वो रिटर्न कैसे होगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक इसको चेंज करना होगा और यूज करना होगा रिटर्न, एंड रिटर्न किसको करना है, एस आई को। ओके, एंड यहाँ पे वॉइड होता है एक रिटर्न टाइप जो कि किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डबल में डिक्लेयर कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं डबल डेटा टाइप की। एस आई आपका डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है और एस आई को हमने रिटर्न किया, तो यहाँ पे हमें डबल ही यूज करना होगा। सो स्टूडेंट्स जो आउटपुट आएगा वो सीधा जहाँ पे हमने मेथड को कॉल किया है वहीं पे ही आएगा, तो हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। डबल रिजल्ट, and here students we will write the statement result and this. So students program is completed, we will compile it first, then after you can execute this program. So students program is successfully compiled and executed, and asking for the values, enter the value P, R and T. So you can pass. Got it? So we got the final output. सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास में 5 मेथड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के आगे प्रोग्राम्स आपको मिलते रहें, नई नई वीडियो आपको मिलती रहें और नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम से पहुंच जाए। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे।